So let us start our fifth sum today. We have done 4 sums in the earlier lecture. Today we will start with the fifth sum. LT Limited went into liquidation with the following liabilities. So the name of the company is LT Limited, who went into liquidation. Creditors दिया है secured creditors. Now what do you mean by secured creditors? Who are secured through a asset. मतलब ये लाइबिलिटी हम जब भी लेते हैं तो एक असेट को रख के लेते हैं. तो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 40,000 का, और वो सिक्योरिटी पे जो असेट है उसने रियलाइज किया 50,000. मींस that asset which we had kept aside to repay the liability, secured liability, that fetched us when we sold, we got 50,000. 40,000 का liability है, सिक्योरिटी ने कितना रियलाइज किया? 50,000. ज्यादा मिला तो रिमेनिंग 10,000 दूसरा लाइबिलिटी पे करने के लिए यूज करेंगे एज पर द ऑर्डर ऑफ पेमेंट. This is similar to piecemeal. We have discussed this in the earlier lecture. And then there is preferential creditors. हम preferential creditors को सबसे पहले पे करते हैं. Preferential creditors क्या होता है? Government dues और employee dues. ये कितना है? 1200. Preferential creditors है 1200. Unsecured creditors है 61,000. So unsecured creditors are how much? Which is not secured through any asset is 61,000. Liquidation expenses 500. Liquidation करते वक्त there may be some expenses incurred which is equal to 500. The liquidator is entitled to a remuneration of 3% on the amount realized, including securities in the hands of secured creditors. So ये 50,000 जो कि हमने secured लाइबिलिटी के लिए जो असेट को साइड में रखा था उसको बेच के जो पैसा आया, प्लस दूसरे असेट्स जितने भी असेट्स को हमने आई मीन लिक्विडेटर ने सेल किया, उसपे लिक्विडेटर इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 3%, टू अ कमीशन ऑफ 3% and 1.5% on the amount distributed to unsecured creditors. Unsecured creditors को जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसके ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, कितना परसेंट रेम्यूनरेशन मिलेगा? 1.5%. 1.5 means 1.5. The various assets excluding the securities in hands of the secured creditors realize 52,000. means secured creditors को जो asset रखा था उसमें 50,000 मिला. अदर देन दैट बाकी assets को बेच के 52,000 मिला, तो टोटल 1,02,000 मिला, जिसपे 3% का कमीशन मिलेगा लिक्विडेटर को. Then what is there? No commission is payable for payment to preferential creditors. Preferential creditors के ऊपर liquidator will not get any commission. जो preferential creditors को पे करेंगे तो कोई commission नहीं मिलेगा. Prepare liquidator statement of account showing the payment made to unsecured creditors. So what we will be preparing? We will be preparing liquidator's final statement of account. What we will be preparing? Liquidator's statement of account. ये receipt side है, ये payment side है. Debit is the receipt side, credit is the payment side. तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं टू assets. Asset से कितना पैसा मिला? See, asset realized how much? You're given na 52,000. See, assets, various assets. नहीं तो मशीनरी, स्टॉक, डेटर सेपरेटली भी दिया रह सकता है, यहाँ पे साथ में इट इज गिवन. So 52,000. Let us write here 52,000. Right? Now to surplus
on securities to surplus on securities, जिसमें असेट कितना रियलाइज हुआ, असेट कितना रियलाइज हुआ सिक्योर्ड लाइबिलिटीज में 50,000, करेक्ट। जो हमने सिक्योर क्रेडिटर्स के लिए जो असेट रखा था उसको सेल करके वी गॉट 50,000, इसमें से लेस करेंगे सिक्योर क्रेडिटर्स, क्या लेस करेंगे, सिक्योर क्रेडिटर्स कितना अमाउंट है, लुक इनटू द क्वेश्चन, सिक्योर क्रेडिटर्स इज हाउ मच, 40,000, we received 50,000 from the asset but we had to pay only 40,000, तो सरप्लस कितना है, 12 या 10, surplus is 10 because asset realized 10,000 and the liability is 40,000, 50 minus 40, 10,000. So हमारे पास बाकी assets को पे, बाकी liabilities को पे करने के लिए कितना पैसा है, we have 62,000, 52 plus 10, we have 62,000. इसमें बाई सबसे पहले we will be paying the liquidation expenses which amounted to how much, any guess, you remember, it's 500. How do I know liquidation expense 500, हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, लिक्विडेशन एक्सपेंस कितना है 5,000। अब लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन देख लेते हैं, so let us go to the working, असेट कितना रियलाइज हुआ, asset realized is 52,000 दूसरे असेट्स को बेच के, और सिक्योर्ड जो हमारा सिक्योर्ड लाइबिलिटी के लिए जो, what you mean by secured liability means this liability is taken keeping aside the asset, तो वो asset, वो security को बेच के 50,000 मिला, तो total how much we receive 1,02,000, इसमें लिक्विडेटर को 3% का रेम्यूनरेशन मिलेगा, so how much is this equal to, take your calci, 1,02,000 का 3% देखो कितना आता है, how much you're getting, are you getting 3060, 3060, इसमें से अभी क्या करेंगे, we have 62,000 total, we have 62,000 to pay to the liabilities, 62,000 हमारे पास टोटल असेट को सेल करके पैसा है, कैसे 52,000 various asset and 10,000 surplus from securities, total to pay the liabilities we have 62,000, इसमें से हम पहले तो लिक्विडेशन एक्सपेंस माइनस करेंगे 500, फिर असेट के लिए लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन which is how much 3060, फिर क्या प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है, हम कैसे पे करते हैं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ पेमेंट, पहले लिक्विडेशन एक्सपेंस, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, फिर हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्ज ऑन ऑल द असेट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, फिर उसके बाद अनसेक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर सब बाहर वालों को पे कर दिया, फिर कंट्रीब्यूटरीज को पे करते, उसमें पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इंक्लूडिंग डिविडेंड, या उनको जैसे भी रिडेम्पशन होगा प्रीमियम में तो प्रीमियम में, उसके बाद फाइनली who are paid इक्विटी शेयर होल्डर्स, और उसके बाद अगर कुछ भी पैसा फिर भी बचा तो दैट इज सरप्लस टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, अगर कुछ नहीं बचा तो नो प्रॉफिट नो लॉस, लेकिन इसमें से अगर किसी को भी हम पे नहीं कर पाते तो वो सारा डेफिशिएंसी, राइट। सो हाउ मच इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स इज 1200, तो माइनस करो ये, इसको भी पे करेंगे, तो ये क्वेश्चन में डिबेंचर्स नहीं है,
हमारे पास कितना पैसा ये सब माइनस करके, हाउ मच मनी वी हैव आफ्टर डिडक्टिंग ऑल दिस, डू वी हैव 57,240, डू वी हैव 57,240? तो ये पैसे से हमें क्या करना है, ये पैसे से वी हैव टू पे टू आवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। बट अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स इज 61,000। क्या हम पूरा 61,000 पे कर पाएंगे 57,240 से? Can we pay all the 61,000 from 57,240? That means हम डायरेक्टली इस पे कितना कमीशन बोला अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में 1.5% का कमीशन है, वो डायरेक्टली नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास पूरा पे करने के लिए पैसा नहीं है, पूरा 61,000 we cannot pay. Then how to calculate the commission? You remember I have told you in the last lecture, 1.5 divide by 100 plus 1.5 मतलब कितना होता है ये 101.5. So this is the way how we will calculate the commission. So निकालो कितना आ रहा है, 846 आ रहा है, 846 you are getting 846. देखो अगर 61,000 पूरा पे करने का पैसा होता तो डायरेक्टली 61,000 का 1.5% निकालते, बट हमारे पास कम पैसा है तो हमें वो अमाउंट ये कमीशन भी पे करना और रिमेनिंग जितना पे कर सकते हैं उतना अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पे करना, सो ऐसा कमीशन निकालते। व्हेन वी आर नॉट एबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ द लायबिलिटी, दैट टाइम वी कैलकुलेट द रेम्यूनरेशन इन दिस वे, मतलब अमाउंट अवेलेबल इनटू कमीशन परसेंटेज डिवाइड बाय 100 प्लस कमीशन परसेंटेज, ऐसे निकालते। तो अभी टोटल रेम्यूनरेशन कितना आया, दोनों को ऐड करते हैं तो टोटल रेम्यूनरेशन कितना आता है टू द लिक्विडेटर, टोटल रेम्यूनरेशन कम्स टू 8906, टोटल रेम्यूनरेशन कम्स टू 3906, करेक्ट 3906। तो लिक्विडेशन एक्सपेंस के बाद क्या पे करेंगे, लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, which through the working note we found out कितना रेम्यूनरेशन है 3906। नाउ इसके बाद ऑर्डर ऑफ पेमेंट में आता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। सी अवर ऑर्डर ऑफ पेमेंट कैसा है, पहले हम पे करते लिक्विडेशन एक्सपेंस, फिर पे करते लिक्विडेटर्स रेम्यूनरेशन, ये सब साइड में रख के पैसा, देन वी पे द प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स व्हिच इज हाउ मच, करेक्ट इट इज 1200। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है 1200। अब बैलेंसिंग फिगर, इसको बंद करो, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा उसको बोलेंगे unsecured creditors, because in this question there is no debentures, debenture holders नहीं है, सिर्फ इतना ही है। how much balancing figure we get, how much balancing figure we get, how much we are getting 56,394, 56,394. So this much amount we are paying to our unsecured creditors. इसके बाद बाकी किसी को पे नहीं कर पाएंगे, इतने में पूरा असेट से मिला हुआ पैसा खत्म हो गया, राइट? इतना ही पैसा था असेट से, असेट्स को सेल करके इतना मिला, इससे हमने ऐसे लायबिलिटीज को पे कर दिया। बाकी का सब क्या है, जो नहीं पे कर पाए वो क्या है, द लायबिलिटी व्हिच वी कुड नॉट पे, could not repay, is the deficiency. With this sum is done. This sum is done. Now let us do the next sum.
Sixth sum you can see in your screen. XYZ Limited went into liquidation on 31/12/2017. 31/12/2017 को XYZ कंपनी जो है, XYZ लिमिटेड जो है, लिक्विडेशन के लिए चला गया. द असेट्स वर रियलाइज्ड. स्टॉक ₹1 लाख. स्टॉक कितना है? 1 लाख. प्लांट से कितना मिला? 75,000. कैश कितना था बिजनेस में? कैश रियलाइज नहीं हो सकता ना, कैश बैलेंस हमारे पास पहले से. कैन वी सेल कैश? रियलाइज करना मतलब बेचना. लिक्विडेटर कैश को सेल नहीं कर सकता. कैश जितना बिजनेस में है वो लिखा है, ऑलरेडी है. ये हम लोग असेट रियलाइज में नहीं गिन सकते. ये हमारे पास पहले से इतना कैश बैलेंस है, which is 625. Liquidation expenses how much? 1375. Creditors है 90,000, जिसमें प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितना है? 90,000 में 8,000 is preferential creditors, means 82 is unsecured creditors other than preferential. फिर 6% डिबेंचर है 80,000. इंटरेस्ट है ऑन डिबेंचर्स पेड अप टू 34/2017. तो हमें जो व्हाट इंटरेस्ट वी विल बी पेइंग टिल 34/2017, तब तक ही पेड है, उसके बाद का भी तो पे करना है. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पेड अप टू 34 मींस 30 April 2017. but liquidation कभी हो रहा है? 31/12/2017 means how many months it's outstanding? अप्रैल के बाद how many months? 4 कम किया तो 8 months का क्या है? 8 months का क्या है? आउटस्टैंडिंग है जो हमें पे करना पड़ेगा, राइट? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 8 months. सो यहाँ पे वो भी पे करेंगे. रेम्यूनरेशन एट 3% ऑन अमाउंट रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश from assets and 2% on the amount distributed to unsecured creditors excluding preferential creditors. मतलब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के ऊपर कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा लिक्विडेटर को. सो लेट अस स्टार्ट. टू असेट्स. इसमें क्या है हमारे पास? स्टॉक है. हाउ मच इज द स्टॉक वैल्यू? 1 lakh given in the question. Then we have plant. How much is the value of plant? 75,000. Then do we have cash also? Cash is how much? 625. इसके बाद कोई सिक्योर्ड क्रेडिटर्स नहीं है कि उसके पीछे कोई असेट को सेल करके पैसे भी kept aside. कोई सरप्लस from securities is not there. So what we will do, this much assets are available to pay the liabilities. It comes to 1,75,625, right? इसमें से पे करेंगे बाय, सबसे पहले we will be paying liquidation expenses. So how much is liquidation expenses? 1375. Now let us find out asset कितना realized हुआ, उसके ऊपर का remuneration निकालते हैं. Asset realized is 1 lakh stock plus 75,000 plant, जो दोनों को मिला के होता है 1,75,000, जिसपे कितना परसेंट रेम्यूनरेशन मिलेगा? 1,75,000 इंटू 3% करो, 1,70,000.
So how much you are getting? How much amount you are getting? 5,250. 5250, right? So इसके बाद हमारे पास हाउ मच कैश इज अवेलेबल? 1,75,625. इसमें से माइनस करेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंस 1,375. फिर क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंशियल अपना ये असेट रियलाइज के पीछे कितना कमीशन हुआ मिला लिक्विडेटर को? 5,250, राइट? लिक्विडेटर को असेट को सेल करके मिला ना 5,250, वो भी माइनस होगा. मतलब 175,625 से लिक्विडेटर हमारे पास असेट्स को सेल करके जितना भी असेट मनी अवेलेबल है उसमें से we will be paying the liquidator's remuneration, right? And liquidation expense, preferential creditors 8,000, and we will have to pay debentures 80,000. debentures 80,000 पे करेंगे. And one more thing, debenture के ऊपर जो इंटरेस्ट अक्रूड हो गया उसके ऊपर भी इंटरेस्ट अक्रूड कितना है जरा देखो. इंटरेस्ट अक्रूड विल बी 80,000 का कितना परसेंट? 6% into how many months? 8 divided by 12, which is coming to how much? 3,200. So we will write 3,200. तो ये भी पे करना है. ये सबको माइनस करके how much money is left out with us to pay the unsecured creditors? unsecured creditors को पे करने के लिए कितना पैसा बच जाता है? Is it 77,800? Is it 77,800? Right? सब माइनस करके 77,800. But look into the question. हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 90 माइनस 82,000. हमारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 82,000, बट हमारे पास तो सिर्फ 77,800 ही कैश बचा हुआ है. तो क्या हम पूरा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स पे कर सकते हैं? नहीं. तो हमारा रेम्यूनरेशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा? हाउ मच इज द रेम्यूनरेशन परसेंटेज ऑन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स? 2%. तो लिखेंगे कैश अवेलेबल इंटू 2% डिवाइड बाय 100 प्लस 2 डिवाइड बाय 100 प्लस 2. 100 प्लस 2 इज 102. तो कितना कमीशन आ रहा है? कितना कमीशन आ रहा है? हाउ मच कमीशन यू आर गेटिंग? 1525. सो दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल रेम्यूनरेशन इज हाउ मच? टोटल रेम्यूनरेशन इज कमिंग टू 6,775. टोटल रेम्यूनरेशन इज कमिंग टू 6,775. तो we will write here by liquidators remuneration 6,775. Then we have इसके बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पे करते हैं. लिक्विडेटर रेम्यूनरेशन पे करने के बाद प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स पे करते हैं which is 8,000. फिर हम डिबेंचर होल्डर्स को पे करते हैं. डिबेंचर होल्डर्स जिसको 80,000 प्लस 3,200 दैट इज देयर इंटरेस्ट. दोनों देंगे तो कितना हो जाएगा? 83,200. फिर बचा हुआ पैसा किसको मिलेगा? बैलेंसिंग फिगर. बैलेंसिंग फिगर विल गो टू बाय unsecured creditors, which will be the balancing figure. Balancing figure. To what balancing figure you are getting? जितना बचा हुआ पैसा है वो इनको मिलेगा, which is 76,275.
Is it coming this much? Is it coming 76 to 75? Check. With this sum also done, and remaining we will continue. Remaining sums we will continue in next lecture. Thank you very much, everyone.